If you want to score 40 out of 40, then you have to watch the video till the end. I can say you ignore the hard works and apply the smart work instead of hard work. And if you feel the toughest chapter, which is none other than height and distance, I would like to recommend skip the chapters. So hello everyone, I would like to welcome each and everyone to the phenomenal session of marking scheme of ICSE class 10 mathematics semester 2 specimen paper. As you are completely thorough about specimen paper, the way you have got the specimen paper, and thank you very much CISE from the bottom of my heart behalf of all the students, that in case of semester 1 specimen paper, the question was, each and every question was mandatory for you all. This time there is having not a mandatory. Yes, section A is mandatory, but section B is not mandatory. If you might be knowing, so let me have a little bit recap of that. In case of section A, as you know very well, 40 marks are there. 40 marks people will be appearing, in which and excluding 10 marks of project work, total is 50. That means theoretical is 40. And out of 40, two sections are there, section A and section B. Section A consists of 10 marks, which is none other than multiple choice questions, MCQ. Section B coming to the subjective part. In case of section A, all questions is mandatory or are mandatory. In case of section B, 5 questions are there, in which you have to appear any kind of 3 questions, in which each question consists of 3 to 4 bits, and you have to appear any kind of 3 questions, right? Maximum students, they don't know the smart way to read. 99% students are there, those who are going on reading randomly without understanding anything. Coming to the toppers, coming to the average, coming to the little bit below average, everyone is going on coming to the rest part. None of you are applying the tricks what is given in the specimen paper, what generally scenario is, what is the COVID situation scenario is. Maximum students are always going on the race. Let us stick to the topic. Every year there is having a trending. You people can go and you people can see all the question paper. You can ask your brother and sister, अगर एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में आता है तो वो कंप्लीट सेट होता है ना, वो कंप्लीट क्वेश्चंस, पूरा क्वेश्चंस इजी बनता है. अगर हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन नहीं आता, वो वाला क्वेश्चंस पूरा इजी होता है. फॉर एन एग्जांपल, according to the specimen, let us take according to the specimen. This is a MCQ which you have got. MCQ reflection 1 mark, section midpoint 1 mark, equation 1 mark, circle 1 mark, tangent of circle से क्वेश्चन चमका नहीं है, trigonometry 1 mark, height and distance से क्वेश्चन कभी शॉर्ट क्वेश्चंस आता नहीं है, because not a single short questions are there from height and distance. अगर हम क्वेश्चन बनाए तो बहुत सारा निकाल दूंगा, कोई बात नहीं. Mensuration 2 marks, 1 plus 1 2 marks, statistics 1 plus 1 2 marks, probability 1 mark. Coming to the section B, देखो अच्छे से देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में 2 क्वेश्चन चमका है, एंड 99% स्टूडेंट्स दे फील हाइट एंड डिस्टेंस इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर. आई वुड लाइक टू से इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर. इफ यू फील टफेस्ट, आई वाज आल्सो फीलिंग टफेस्ट इन माय 10th ग्रेड, टू बी ऑनेस्ट. देखो अच्छे से, जिसमें आया हुआ है क्या, हाइट एंड डिस्टेंस, वहां से क्वेश्चंस पूरा इजी बनता है. देखो 3 मार्क यहां पर, तो 3 मार्क कहीं सर्कल में गिरेगा, रिफ्लेक्शन में गिरेगा, प्रोबेबिलिटी गिरेगा. दिस सेक्शन इज इजी, एंड हियर द सेक्शन इज समहाउ इजी. एंड आई डोंट नो हाउ दे हैव पुट स्टैटिस्टिक्स एंड हाइट एंड डिस्टेंस टुगेदर. आई डोंट नो दिस टाइम, मगर वो कभी आते नहीं है साथ में. वो दोनों का कभी पढ़ता नहीं. दैट मींस स्टैटिस्टिक्स एंड हाइट एंड डिस्टेंस. And the most important, if you are an ICSE class 10 semester 2 aspirant, I would like to say, don't read height and distance. Yes, it is one of the irrelevant topic.
I should not say this kind of topics, I should not say this kind of things being a teacher, but I am saying if you are having a lots of problem in case of height and distance, अगर तुम्हें बहुत सारा प्रॉब्लम है हाइट एंड डिस्टेंस तो मत पढ़ो। उसका मतलब नहीं हम अपना लेक्चर नहीं डालेंगे, हम तो डालेंगे। डोंट रीड, बट यू हैव टू मेक योर वेपन स्ट्रांग इन केस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। You have to make yourself strong in case of statistics. Statistics तुम्हें बहुत अच्छे से करना है बेटा। Statistics is something which will help you to keep 40 out of 40 in case of ICSE class 10 semester 2 examination. If you are a below average student, if you are average student, if you are topper student, I would like to say statistics is something which will help you to score 40 out of 40, which will help you to score 40 out of 40. And the most important unit, chapter, I'm saying unit, chapter of ICSE class 10 mathematics semester 2, that is statistics. I would like to put on the top. The moral of the story, write it down everyone, statistics you have to complete first. You have to give a lots of time on the statistics. Number 1. नंबर 2, अगर मुझे हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ना तो मैं अपना फिर से वेपन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मुझे मेंसुरेशन में। व्हाई? बिकॉज मेंसुरेशन इज समथिंग डार्क हॉर्स। हमेशा क्लास में रहता है छुपा रुस्तम, एक रहता है, राइट? मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, दोज हु आर वेरी साइलेंट एंड दोज हु कम फर्स्ट एंड सेकंड इन क्लास, दैट इज अ मेंसुरेशन. It is little bit average, I can say. Not so easy, not so difficult. Little bit tricky. You have to understand only words. Word अगर एक word समझ जाओगे आंसर निकल जाएगा. Word में कैसे? I will be coming with the tips and tricks of that mensuration, and I will be coming with the chapter lecture series also. You have to make the concept strong in case of mensuration. That means if I want to skip height and distance, why I have bought this kind of video? Because of you, because the way I am getting all the mails, sir, height and distance, that's the reason height and distance ke liye I have come with a clue, right? And if any teachers are looking after the video, I am very sorry, I am not making any kind of disturb to all the students. It's only for them, and so that the people can keep you secure a very good number of marks. Mensuration, then I would like to put trigonometry. क्योंकि हमेशा हर साल आता है। अगर हाइट एंड डिस्टेंस, दैट एक्चुअली योर ब्रदर एंड सिस्टर दे यूज्ड टू गेट 2 सेट्स, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए 40 मार्क, सेक्शन बी 40 में 80 मार्क का होता था एग्जाम। सेक्शन ए वाज मैंडेटरी, सेक्शन बी वाज नॉट मैंडेटरी। 7 or 8 क्वेश्चन जनरली, 7 or 8 क्वेश्चन जनरली इट्स देयर, दे हैव टू अटेम्प्ट एनी 7 क्वेश्चन रहता है, 4 करते हैं। उनमें से अगर हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल रहेगा, ट्रिगोनोमेट्री का सवाल नहीं रहेगा। अगर ट्रिगोनोमेट्री का सवाल रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल नहीं रहेगा। इन विच यू कैन सी ओवर हियर, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, ट्रिगोनोमेट्री का सवाल नहीं है। देखो, ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल नहीं है। एंड इफ यू वांट टू स्कोर हाइट एंड डिस्टेंस, यू हैव टू मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग इन केस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा अगर तुम सोच रहे हो हाइट एंड डिस्टेंस ना पढ़ने के लिए। एंड यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट मी, डोंट वरी, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू नहीं आएगा ना। इन केस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस देयर विल बी हैविंग नो एमसीक्यूज, दैट्स द रीजन आई एम स्किपिंग दिस। अदरवाइज हम क्यों छोड़ने वाले थे, क्योंकि ये तो एमसीक्यू तो 1 मार्क इज प्रीशियस फॉर अस, राइट? दैट्स द थिंग। कमिंग सर्कल, जनरली एवरीवन हैव टू रीड सर्कल एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई वुड लाइक टू पुट ऑन द लास्ट। व्हाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इसलिए एक्चुअली ये फर्स्ट होना चाहिए मेरे पास, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मुझे पक्का पता होगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन गारंटी आएगा, दैट इज रिफ्लेक्शन में एक ग्राफ वाला पार्ट। फ्यू क्वेश्चंस इज गारंटी विच यू पीपल विल बी गेटिंग। 1 क्वेश्चन फ्रॉम रिफ्लेक्शन, व्हाट, ग्राफ वाला पार्ट। एक क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, एग्जांपल्स में वो आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस विच जनरली आई एम सेइंग एंड इट कम्स। प्रोबेबिलिटी में आएगा, एग्जाम्पल्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस। यस, प्रोबेबिलिटी में ज्यादा 3 मार्क का सवाल नहीं पूछा जाता, उसमें खाली 2 ही, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस दे विल बी आस्किंग, ICSE विल बी आस्किंग यू। एंड सर्कल दिस मच। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, इफ यू वांट टू
and I'm talking for the aspirant, those who don't want to read height and distance, जो हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ना चाहते हैं उनको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। पहले स्टैटिस्टिक्स, सेकंड मेंसुरेशन, थर्ड ट्रिग्नोमेट्री, फोर्थ सर्कल, at the end coordinate geometry. And if you people are giving lots of importance to the height and distance, don't worry, you can. height and distance अगर बहुत सारा इंपॉर्टेंस तुम दे रहे हो तो तुम्हें रिफ्लेक्शन को ज्यादा भी देना पड़ेगा, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, मेंसुरेशन, अगर ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है हाइट एंड डिस्टेंस तो टॉपर ही होगा, अच्छा बच्चा होगा अभी। इज इट क्लियर? सो मोरल ऑफ द स्टोरी, you have to give a lots of importance to the statistics, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट देना। अगर तुम 40 से 40 लाते हो, बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे ट्रिग्नोमेट्री, अरे मैं ट्रिग्नोमेट्री करना है, सर्कल करना है, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स तो बोला, स्टैटिस्टिक्स वेरी इजी, हो जाएगा पटापट। देयर यू डू रॉन्ग, देयर ओनली यू डू रॉन्ग, पटापट नहीं होता वो, स्टैटिस्टिक्स समथिंग पटापट नहीं होता, यू नीड टाइम फॉर दैट, यू नीड टाइम फॉर द कैलकुलेशन। F1 F2 दिया होगा, फाइंड F of F1 निकालो, तो मुझे सम करना है, आई हैव टू डू एड, आई हैव टू डू माइनस तो नहीं होता जनरली, आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एज्यूमिंग मेथड, शॉर्टकट मेथड, मेनी मोर आई हैव टू अप्लाई दैट, in which you have to do only direct method if I'm not wrong this time. So statistics, mensuration, trigonometry, circle, coordinate geometry, you have to give a lots of time according to it. अगर तुम्हें 40 से 40 लाना है, तुम ऐसे ही कुछ सवाल, ऐसे ही कुछ अपना प्रिपरेशन करना है। अगर तुम अच्छे बच्चे हो, you have to read everything, don't worry, if you are having very good student then everything you have to read. अगर तुम हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे हो तो पक्का स्टैटिस्टिक्स में उसके साथ लेके जाओगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री you have to do. अगर कोई बच्चा हाइट एंड डिस्टेंस में ठीक है तो वो जनरली अपना प्रिपरेशन थोड़ा लूज कर सकता है ट्रिग्नोमेट्री में। यू पीपल कैन लिटिल बिट, इफ यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आई कैन किल हाइट एंड डिस्टेंस फर्स्ट, देन ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा लूज वाला प्रैक्टिस करो, कोई दरकार नहीं इसमें, क्योंकि यू पीपल विल बी नॉट गेटिंग 2 क्वेश्चंस इन 1 से क्वेश्चंस। एक सपोज एक क्वेश्चन है, सपोज नंबर 1 क्वेश्चन, लेट अस सपोज नंबर 1 क्वेश्चन 3 बिट माइट बी हैविंग 4 बिट, लेट अस अंडरस्टैंड। ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा जिसमें से ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस 2 क्वेश्चन रहेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। यूनिट आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट, हर यूनिट में एक सवाल आएगा, हर यूनिट में एक सवाल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सपोज दिस बिट 1 इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड इज सर्कल, फोर्थ इज स्टैटिस्टिक्स, ऐसे कुछ आएगा। और एल्स सर्कल को उठा के प्रोबेबिलिटी में डाल सकता हूं, ऐसे कुछ आएगा। तो बिलीव दैट, and you have to prepare, and you have to prepare according to it. I hope the session is really helpful to you, my dear most children, and you can take the screenshot. You can take the screenshot of this, and it will generally, it is a specimen paper. I have took it out. I have done a little bit marking scheme. I have took all kinds of marks from there, all kinds of questions mark, and you can people can take a screenshot. Let me go aside. All right. So thank you very much. Signing off for the today. If this session is really helpful, do comment right there, then only I will bring in case of physics. Thank you. God bless.